मैं जस्ट शेयर कर दूं स्क्रीन जी। लास्ट टाइम हमने ना हाइपोपैराथायराइडिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसके फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे। जस्ट अ क्विक ब्रीफ रिव्यू जो है ना वो उसके बारे में है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म इज बेसिकली decreased production of parathyroid hormone by the parathyroid glands and leading to hypocalcemia and hyperphosphatemia. Different causes. Most common is the post-surgical, that is after total thyroidectomy, trauma, या हम जब total thyroidectomy करते हैं and when we save parathyroid glands identify करते हैं, but unfortunately क्या होता है कि उनकी जो blood supply है that compromises. So that leads to the devascularization, then autoimmune and Wilson disease, and there is congenital DiGeorge syndrome. So clinical features, if we discuss about, then it comes in two categories. One is acute hypoparathyroidism, and the second one is chronic hypoparathyroidism. Mild symptoms to it. In acute condition, it goes into the severe conditions, like initially patient jitni hypoparathyroidism ke honge, they will tell you about that they have circumoral and digital numbness, paresthesia leading to the tetanic symptoms. Tetanus basically what happened in hypocalcemia, it's the overstimulation of the nerves that leads to muscle spasm करती है, contraction करती है, and leading with carpopedal or laryngeal spasm. अगर इसमें देखो बेटा तो ये जो hands की हैं, ठीक है, laryngeal spasm, इधर देखो आप इसमें तो hand carpal spasm, तो मिसनोमर है, फीट का कम होता है, हैंड्स में ज्यादा होता है, तो कार्पल स्पैज्म ज्यादा होते हैं. Laryngeal spasm, if is there, तो shortness of breath can be fatal. Cardiac arrhythmia, hypocalcemia can lead to cardiac arrhythmia and fits. So this is the acute presentation of hypoparathyroidism. If certain levels उससे जो कम हमारे जो है ना calcium levels आ जाएंगे in this condition. And this is what happened with hypocalcemia, that is carpopedal spasm, sinus rhythm with diffuse ECG changes के साथ होती है, जो T wave diffuse inversion है, QT prolongation हो जाती है, ठीक है, and prolongation is also in ST segment and the T wave. And in chronic hypoparathyroidism, abnormal bone demineralization is there, cataracts formation, then calcification in the basal ganglia, and consequently some extrapyramidal disorders like dystonia, Parkinson's, bradykinesia, akathisia, tremors, and dyskinesia. Just brief about all these extrapyramidal disorders. This picture is there. Like in Parkinson's, this is pseudo-Parkinsonism, in which stoop posture, shuffling gait, rigidity, bradykinesia, and the tremors. And if we discuss about the acute dystonia, that this includes facial grimaces, involuntary upward eye movements, muscle spasm of the tongue and the others, and the laryngeal spasm. Then in akathisia, there's the restlessness. Basically, most common is this feet in constant motion, that is rocking back and forth. Then tardive dyskinesia, that is protrusion and rolling of the tongue, sucking and smacking movement of the lips, chewing movements, facial dyskinesia, and involuntary movement. So this is the chronic one. When the chronic low calcium levels are there, serum calcium levels are there, then this can happen. अच्छा, अब एक सेकंड, मुइजा आप बताओ बेटा हाइपोपैराथायराइडिज्म के फीचर्स. आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आप बताओ हाइपोपैराथायराइडिज्म के फीचर बताओ मुझे, ये कैसे होता है हाइपोपैराथायराइडिज्म. सर इसमें एब्नॉर्मल बोन डीमिनरलाइजेशन होती है क्लिनिकल फीचर्स में. पहले आप यू जस्ट टेल मी अबाउट के हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा कैसे, इसके बारे में मुझे बताओ. एक तो पैराथायराइड हार्मोन का बताओ मुझे कि उसके क्या फीचर्स हैं, और साथ हाइपोपैराथायराइडिज्म किस किस कंडीशन में हो सकते हैं.
फ्लैट ऊपर आ सकता है क्या चीज? इसको ये वाले पे क्लिक करो। कौन बताएगा? वैसा आप इसके चलो जितना आपको आता है बेटा आप बताओ। बीच वाले पे। नहीं एक बीच में भी है। ये सर इसके क्लिनिकल फीचर्स में बोन मिनरलाइजेशन, कैटरैक्ट्स होते हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर जैसे डिस्टोनिया, एकेंथीसियास, पैराकिंसनिज्म और ब्रेडिकाइनेजियाज और ट्रेमर्स और वगैरह होते हैं। और आप इसको क्लिनिकली हाउ यू आर गोइंग टू असेस इट क्लिनिकली? अ पेशेंट कम्स आफ्टर थायराइड सर्जरी और उसके 2 दिन बाद कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें हमें लगता है कि द पैराथायरॉइड ग्लैंड ब्लड सप्लाई इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड और सैक्रिफाइस्ड और वी हैव टेकन आउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड? अगर नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, आगे बताओ। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा आप मदीहा आप बताओ मुझे कि कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हम देख सकते हैं आफ्टर द सर्जरी ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसमें हमें पता चलेगा कि पैराथायराइड ग्लैंड सैक्रिफाइड हो गया। मदीहा गफ्फार। मदीहा है? आई थिंक सर आगे कंटिन्यू कर दें, लेक्चर खत्म कर लें फिर क्योंकि बच्चे तो नहीं वाई मदीहा क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बता रही? आप लेक्चर करो पर मैंने दोबारा इन दोनों बच्चों से पूछना है। मैंने उसे पर्सनल मैसेज किया पर मैं दोबारा पूछूंगा अभी। सो हमने अभी डिस्कस किया एक्यूट एंड क्रॉनिक हाइपोपैराथायराइडिज्म। सो दिस स्लाइड जस्ट होल फीचर्स जो दोनों हैं सब में हो सकते हैं, ठीक है। इन हाइपोपैराथायराइडिज्म इन होल बॉडी पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हेड लॉस के साथ एंजाइटी, कैटरैक्ट फॉर्मेशन, tooth problems, they have speech problems, then cardiac abnormalities, itching and twitching, acne features, muscle weakness, cramps, contractions, and then numbness or tingling. Diagnostic test in hypoparathyroidism, ठीक है, जब low calcium levels होते हैं तो हम clinically we can diagnose the patient that patient is having a hypocalcemia, especially जब हम थायराइड सर्जरी करते हैं, जब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं तो हम ये एक दो साइन इसमें करते हैं टू लुक फॉर एनी हाइपोकैल्सीमिया फीचर्स, जिसमें से जो हमारे पास आता है चवॉस्टिक साइन एंड ट्राउजियस साइन। तो चवॉस्टिक साइन इज बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया का क्या है कि हम वी परकस द फेशियल नर्व just below the zygoma, this is the zygoma, और in front जो हमारा जो ट्रैगस है इसके in front सामने हमने just टैप करना है फेशियल नर्व को, एंड इससे क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द फेशियल नर्व होता है और उस इप्सिलेटरल साइड के जो मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो दिस इज चवॉस्टिक साइन एंड इन ट्राउजियस साइन this is basically for the carpal spasm, carpopedal spasm, जिसमें हम ये करते हैं कि
राइट साइड जैसे हम बीपी कफ का जो उसकी कफ है वो अप्लाई करते हैं, एंड वी इन्फ्लेट द बीपी, इन्फ्लेट और उसमें एयर हम इन्फ्लेशन करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 और 140, तो उससे हमें 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज्यादा करना है, एंड वी लीव इट देयर टिल द पेशेंट हैव द स्पैज़ फॉर द 3 मिनट्स के लिए हम उसको इन्फ्लेट करते हैं। और इससे अगेन लोकल फीचर हाइपोकैल्सीमिया ट्रॉमा उसकी वजह से होता है, एंड पेशेंट अगर हाइपोकैल्सीमिया में ऑलरेडी है उसके कार्पल स्पैज़म आते हैं। So ये दो clinical tests हैं that we can perform easily in our clinical setting to look for features of hypocalcemia. Diagnose clinically Chvostek sign if patient is giving ipsilateral facial muscle contraction, we go for calcium level laboratory करी examination और उससे हमें confirm हो जाएगा कि patient में calcium levels कम है, there's a need to replace the calcium. अच्छा, अबीहा आप बताओ दोनों साइंस के नाम। सर ट्रॉसिया और चोस्टेक साइन कैसे करते हैं बेटा? सर जो ट्रॉसिया साइन होता है इसमें हम कार्पोपीडियल जो मसल होती है उस पे कफ को इन्फ्लेट करते हैं और वहाँ पे जो। ठीक है, हलीमा आप बताओ दूसरे वाला साइन। जी सर। हलीमा आपको आवाज आ रही है? यस सर। ये अपने ना ये माइक्स ऑफ रखो क्योंकि ये बहुत शोर आ रहा है। आप लोगों को जो इसको क्वेश्चन कहा जाए उनको ही करना है, तो शायद और ना किसी को ऑन रखो। जी ठीक है। हाँ, ये पीछे से ना शोर आ रहा है किसी के ना माइक से बहुत ज्यादा। हलीमा बेटा आप बताएं जो दूसरा साइन है। माइक कैसे ऑफ करने हैं बाकी होंगे सबके माइक ऑफ कर जाओ, जिसको सबके माइक ऑफ कर दो, सिर्फ जो जिसने जवाब देना वही ऑन रखे। बच्चों के अपने माइक ऑफ करना होगा, बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन और उनके ऑन भी होने चाहिए ना। अगर हलीमा नहीं बताएगी तो फिर उसके बाद अमार बताएगा दूसरे वाला साइन। अमार ऑन करके जवाब दो। जब आप अनम्यूट करेंगे सर इसमें अब ये सारे म्यूट हो जाएंगे ना, वो उसमें सर भी म्यूट होगा, आप भी म्यूट हो जाएंगे। नहीं, उनको सर को मैन्युअली अनम्यूट करें। हाँ, एक नहीं तो वो इसको अगर आप अलाउड पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ करेंगे तो सिर्फ। जी सर, अब आवाज आ रही है सबको? अब जिस बच्चे ने बात करनी है सर ऐसे करें, आप सब बच्चों को खुद कह दें, वो खुद बंद कर देंगे। इसकी पर स्पेस ठीक है, रखेगा, ठीक है, तो वो बात करेगा और फिर ऑफ हो सकता है, जैसे वॉकी टॉकी पे यूज करते हैं। बस ठीक है, वो सारे खुद ही ऑफ कर देते हैं, उसे कह रहे हैं उसमें मैनेज करना डिफिकल्ट। और सारे बच्चे इतनी बात मानने वाले हों तो फिर तो मसले खत्म हो जाए ना। चलो अमार बेटा शाबाश, दूसरा साइन बताओ। फीडबैक सर, एक बंदे ने कहा जी कि मेरा ना मसला आता है कि लैपटॉप के साथ बार बार डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, उसका दो बंदों ने कहा जी कि हमें ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं आती है, कोई एक माह में कभी बार कोई हो जाता है, तो ये क्या है? तो किधर है?